Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss the last sections of experts' opinion. Section 50 and section 51 we will discuss in today's lecture. So section 50 deals with opinion as to relationship. So whenever the relationship of any person is in dispute, then the court can seek the opinion of any person who knows very well about that particular relationship, and the reason for opinion we will discuss in today's lecture. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 50 और सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि जब कभी भी कोर्ट के सामने किसी के रिलेशन को लेकर अगर डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट ऐसे पर्सन का ओपिनियन ले सकता है जो उनके रिलेशन को जानता है और वो ओपिनियन रिलीवेंट होगा। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 50 and 51 of Indian Evidence Act, that is the last part of expert opinion. Section 50 deals with relevancy of opinion as to relationship. So where the court has to form an opinion as to relationship between two person. जब कभी भी कोर्ट को दो पर्सन के बीच में के रिलेशनशिप से रिलेटेड ओपिनियन फॉर्म करना है, the opinion of a person on such relationship is relevant on the following condition. So the court can seek an opinion of any third person and that opinion becomes relevant on the following condition. तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे पर्सन का ओपिनियन कॉल करेगा जो उस रिलेशनशिप के बारे में जानकारी रखता हो और उसका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। उसके लिए कुछ कंडीशन है। द फर्स्ट वन इज he may be a member of a family of such person whose relationship is in dispute, or he may be an outside. So whose opinion becomes relevant? The opinion of such person becomes relevant if he is a member of a family whose relationship is in dispute. तो जिसकी रिलेशनशिप डिस्प्यूट में है उसका फैमिली मेंबर का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 50 में, या ऐसा आउटसाइडर जो उनकी रिलेशन के बारे में जानता है उसका ओपिनियन रिलीवेंट होगा। बी, he must have special means of knowledge as to such relationship. The person who is having a special means of knowledge as to the relationship of any person, the opinion of that person becomes relevant. ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट होगा सेक्शन 50 में ये प्रूव करने के, रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए जो उनके रिलेशनशिप के बारे में स्पेशल नॉलेज रखता है, उसको स्पेशली पता है उनके रिलेशनशिप के बारे में, ऐसे पर्सन का ओपिनियन भी सेक्शन 50 में रिलीवेंट हो जाएगा। Then his opinion must be expressed by conduct. उसका ओपिनियन बाय कंडक्ट एक्सप्रेस होना जरूरी है। देखिए ये चीजें, the opinion or belief of a person especially competent in this respect as expressed by this conduct in outward behavior is relevant. Here the word conduct is not necessarily limited to the conduct of the relation of a person in dispute, but it includes the conduct of the witness who gave his opinion about the existence of such relationship. Sometimes his opinion must be expressed by conduct. तो conduct जो है person का, बहुत सी बार ये होता है कि सपोज इफ एनी पर्सन इज रिसीविंग ए एंड बी एज अ कपल, है ना, तो इस कंडक्ट शोज दैट दे वेर हैविंग सच अ रिलेशनशिप। सपोज ए और बी है और दूसरा पर्सन उनको कंडक्ट बाय कंडक्ट कैसा ट्रीट कर रहा है कि वो दो ए और बी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और वैसा ही रिसीव कर रहा है, तो क्या होगा, इसका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 50 में ये प्रूव करने के लिए कि बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो बाय कंडक्ट भी यहां पर प्रूफ हो सकता है रिलेशनशिप। अभी देखिए क्वेश्चन है यहां पर, द क्वेश्चन इज वेदर प्रीतम एंड सरिता वेर मैरिड। अब यहां पर क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि प्रीतम और सरिता की शादी हुई हुई है या नहीं है ना, वेर मैरिड और नॉट। पॉल एंड आनंद, the fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. Paul and Anand always treated Preetham and Sarita as a husband and wife. That
पर्टिकुलर फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट। अब होगा ऐसा, कोर्ट के सामने तो क्वेश्चन है कि प्रीतम और सरिता हस्बैंड वाइफ है या नहीं है। अब ओपिनियन ऐसा है कि जो पॉल और आनंद है, बाय कंडक्ट दे यूजुअली ट्रीटेड देम एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आनंद जो प्रीतम का दोस्त है वो सरिता को भाभी कहकर बुलाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आनंद ट्रीट दोनों क्या कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट कर रहा है। तो दैट कंडक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 50 टू प्रूव द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन प्रीतम एंड सरिता। तो ये जो दोनों की रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ है, ये प्रूव करने के लिए इसका कंडक्ट रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 50 में। व्हाई? बिकॉज पॉल एंड आनंद ट्रीटेड देम एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट, वो रिलीवेंट हो जाएगा। अभी देखो प्रोविसो, द प्रोविसो टू सेक्शन 50 प्रोवाइड्स दैट द ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप कांट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज। देखो कि ये जो ओपिनियन है सेक्शन 50 में, ये सफिशिएंट नहीं होगा, कांट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज, कि मैरिज को प्रूव करने के लिए ये ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा। काय में? इन द प्रोसीडिंग अंडर इंडियन डाइवोर्स एक्ट, के इंडियन डाइवोर्स एक्ट में अगर प्रोसीडिंग चल रही है, डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, और डिवोर्स की प्रोसीडिंग चलने के पहले मैरिज प्रूव होना जरूरी है, मैरिज प्रूव होगी तब जाके डिवोर्स का मसला आएगा। तो डिवोर्स प्रोसीडिंग में मैरिज प्रूव करने के लिए सेक्शन 50 का ओपिनियन रिलीवेंट नहीं होगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा मैरिज को प्रूव करने के लिए। दैट ओपिनियन विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव द मैरिज if there is a case going on under Indian Divorce Act. Second one is in the prosecution for, और वो ऐसे प्रोसिक्यूशन है जिसमें सेक्शन 50 का ओपिनियन जो रिलेशनशिप को प्रूव कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं होगा मैरिज को प्रूव करने के लिए। हाँ, बाइगमी, बाइगमी में क्या है, सेक्शन 494 में ऑफेंस है बाइगमी, कि अगर एक पर्सन है हिंदू जो एट ए टाइम 2 वाइफ है उसकी, तो बाइगमी का ऑफेंस है, एट ए टाइम एक ही वाइफ रह सकती है उसकी। तो अब बाइगमी के ऑफेंस में मैरिज प्रूव करने के लिए रिलेशनशिप जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन बाइगमी में जो सूट चल रहा है, बाइगमी का जो केस चल रहा है, उसमें मैरिज प्रूव करने के लिए सेक्शन 50 का ओपिनियन रिलीवेंट नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा, मैरिज प्रूव नहीं होगी वो ओपिनियन से, समझ रहे हो। मैरिज दूसरे एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस से ही प्रूव करना पड़ेगा। बाइगमी विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम द पर्सन विथ हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, सेक्शन 495। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने दूसरी शादी किया पहली शादी को छुपा के, दूसरी जो फीमेल है जिससे उसने शादी किया उससे पहली शादी छुपा के अगर उसने मैरिज किया है तो वो ऑफेंस पनिशेबल है सेक्शन 495 में। तो अगर पहली शादी प्रूव करने की है, मैरिज अगर प्रूव करने की है, तो सेक्शन 50 के ओपिनियन से वो मैरिज प्रूव नहीं होगी, बल्कि दूसरे इंडिपेंडेंट एविडेंस के जरिए वो मैरिज प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अडल्ट्री। अगर अडल्ट्री, तो अडल्ट्री का ऑफेंस क्या होगा, अडल्ट्री के ऑफेंस में ऑफेंस प्रूव करने के लिए पहला प्रूव करना जरूरी है कि जिस वुमन के साथ कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हुए वो वुमन मैरिड वुमन थी, पहले प्रूव करना पड़ेगा। अब यहां पर भी मैरिज प्रूव करने के लिए सेक्शन 50 का ओपिनियन से, सेक्शन 50 के ओपिनियन से मैरिज प्रूव नहीं होगी, बल्कि इंडिपेंडेंट एविडेंस के जरिए मैरिज प्रूव करना पड़ेगा। इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग a married woman with criminal intent, section 498 IPC. Suppose if the charges leveled against the person is under section 498, then in this particular charges the marriage must be proved. So for proving the marriage, the opinion under section 50 is not relevant. जब कभी भी सेक्शन 498 के अंदर अगर चार्जेस किसी पर्सन पे लगते हैं, अक्यूज्ड पे, तो उस सिचुएशन में वो जो मैरिड वुमन को उसने लेकर गया या डिटेन किया, ये प्रूव होना जरूरी है। तो पहले मैरिज प्रूव होना जरूरी है उस वुमन की। तो मैरिज को प्रूव करने के लिए सेक्शन 50 का ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि कुछ इंडिपेंडेंट एविडेंस के जरिए ही मैरिज प्रूव की जा सकती है। इन दीज केसेस द फैक्ट ऑफ मैरिज मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रूव्ड इन रेगुलर वे। तो ये सब जितने ऑफेंस हमने ऊपर डिस्कस किए, इन सब ऑफेंसेस में मैरिज रेगुलर वे में प्रूव होगी, दूसरे एविडेंस से प्रूव होगी। सेक्शन 50 के ओपिनियन पे मैरिज प्रूव नहीं हो सकती है। दैट इज द प्रोविजन। नाउ श्री राम सरदारमल दिदवानी वर्सेस गौरी शंकर, दैट इज द केस।
In this particular case, it was held that person whose opinion is sought to be proved for the purpose of proving the existence of a relationship must be person who either as a member of family or otherwise have a special means of knowledge as to such relationship. So in this particular case, there is a certain guidelines given. Then whenever the court seek and call opinion of any third person relating to any relationship, then such person whose opinion is sought by the court, that person must be a family member of the person whose relationship is in question, or he must have a special means of knowledge as to such relationship. जब कभी भी कोर्ट किसी ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप कॉल करेगा तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन कॉल करेगा वो पर्सन जिसका ओपिनियन कॉल किया हुआ है, वो पर्सन जिसका रिलेशनशिप डिस्प्यूट में है, उसका फैमिली मेंबर हो या उसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो उनकी रिलेशनशिप से रिलेटेड. सो पर्सन लाइक अ फैमिली डॉक्टर, टीचर, प्रीचर, ग्रोसर और फ्रेंड ऑफ प्रूविंग द रिलेशनशिप. तो ये जो पर्सन है लाइक डॉक्टर को पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशनशिप. सपोज हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप में अगर डिस्प्यूट है तो ये हस्बैंड और वाइफ है या नहीं है, अगर ये प्रूव करना है तो डॉक्टर का स्टेटमेंट रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 50 में. डॉक्टर ये कह सकता है कि 4 साल से इनका ट्रीटमेंट मेरे पास है और ये एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं. टीचर का, प्रीचर का, ग्रोसर का, फ्रेंड का, इनका क्योंकि दे आर हैविंग ए स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू रिलेशनशिप. टीचर का कैसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल के पर्टिकुलर चाइल्ड इज a son of other person is or not. ये पर्सन किसी का लड़का है या नहीं है, ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने. अब क्या होगा कि एक टीचर है जो लड़के को पढ़ाता है, वो टीचर का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 50 में. वो टीचर ये कहेगा कि 3-4 साल से ये लड़का मेरे पास पढ़ रहा है और जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है यही पर्सन यहाँ पर अटेंड करने के लिए आता है. तो रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए टीचर का ओपिनियन, क्योंकि वो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, तो ये जरूरी है सेक्शन 50 में. अब प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 50 पे जो आ सकता है, whose opinion is relevant to prove relationship under section 50 of Indian Evidence Act 1872. Member of the family, person having special means of knowledge on the subject. Both of the above are correct, none of the above are correct. तो अगर हम सेक्शन 50 देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिक बोला है कि ओपिनियन ऑफ अ मेंबर ऑफ फैमिली एंड द पर्सन हु इज हैविंग ए स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज बिकम्स रिलीवेंट. तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट. Option 3 is a correct answer. Now, another probable question is that the relationship in section 50 of Evidence Act means relationship by blood only, relationship by blood or marriage, relationship by blood or marriage or adoption, only A and not B, C. अगर हम यहाँ देखें तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और अडॉप्शन. तो यहाँ पर रिलेशनशिप बाय ब्लड भी क्वेश्चन में आती है तो सेक्शन 50 का ओपिनियन रिलीवेंट होगा. बाय अडॉप्शन भी आती है तो होगा, बाय मैरिज भी आती है तो ओपिनियन रिलीवेंट होगा. अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन, ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 50 ऑफ CRPC एविडेंस है इज एडमिसेबल इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, इज एडमिसेबल इन प्रोसीडिंग अंडर इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इज एडमिसेबल बोथ A and B, is neither admissible in cases of offense against marriage nor in proceeding under Indian Divorce Act. So is admissible both in A and B, is admissible in cases of offense against marriage, is admissible in proceeding under Indian Divorce Act. Opinion as to relationship marriage under section 50. Now, तो यहां पर क्या होगा कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. वो बाय मिस्टेक वो थर्ड ऑप्शन में बताने में आ गया, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है कि यहाँ पर प्रोविसो जो बताया हुआ है, द प्रोविसो ने क्लियर किया है कि सेक्शन 50 प्रोवाइड्स दैट द ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप कांट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज. किसी की मैरिज प्रूव करने के लिए सेक्शन 50 का ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट एविडेंस के जरिए उसको प्रूव करना पड़ेगा. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. नाउ सेक्शन 51, रिलीवेंसी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन. व्हेनेवर the opinion of any living person is relevant, the ground on which such opinion is based are also relevant. जब कभी भी किसी पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट है ये चैप्टर में एज ए एक्सपर्ट,
तो ग्राउंड्स, जिस ग्राउंड्स के चलते उसने अपना ओपिनियन फॉर्म किया, दैट ग्राउंड्स और आल्सो बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 51. So opinion is no evidence without assigning reason for such opinion. The person cannot form an opinion independently, but he has to mention the grounds on the basis of which he form opinion. सिर्फ अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स पे उसने अपना ओपिनियन फॉर्म किया, वो ग्राउंड्स भी मेंशन करना जरूरी है. इसलिए सेक्शन 51 ये कहता है कि ग्राउंड्स आर ऑल्सो admissible and relevant under section 51. The correctness of the opinion can be better estimated if the reasons upon which it is based are known. So if we want to analyze the correctness of an opinion, we can better analyze if we know the reason behind such an opinion. हम अगर किसी के ओपिनियन का करेक्टनेस अगर हमको जानना है, तो हम अगर रीजन देखेंगे कि व्हाई ही कम टू सच कंक्लूजन, अगर वो किस बिना पे वो कंक्लूजन पे आया, अगर हमने उसको एनालाइज किया तो हम उसका करेक्ट है या नहीं है, ये ओपिनियन हम पता कर सकते हैं. दैट्स व्हाई ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 51. So if the reasons are frivolous or inconclusive, the opinion is not worth nothing. अगर जो रीजन है वो बेसलेस है, इनकंक्लूसिव है, तो ओपिनियन बेसलेस हो जाएगा, ओपिनियन का कोई वर्थ नहीं रहेगा. An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. एक्सपर्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, तो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया वो भी बताना पड़ेगा. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट आई कम टू दिस कंक्लूजन, कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया और इस बिना पर मैं ये कंक्लूजन पे आया, ये मेरा ओपिनियन है. दैट्स व्हाई द एक्सपेरिमेंट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 51. दो Govardhan versus State, that is the case. An excise inspector is an expert on the question whether a certain liquid is illicit liquor or not. एक्साइज इंस्पेक्टर एक्सपर्ट था कौन से क्वेश्चन पे, कि जो लिकर है वो इलिसिट है और या नहीं है, वो नाजायज है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर ही गिव्स हिज ओपिनियन एज एन एक्सपर्ट, he has to examine it and also to furnish the data on which his opinion is based. So if such a chemical, an excise inspector wants to form his opinion, before forming his opinion he has to examine that particular liquor. So whatever the mode he applied for the purpose of examining that liquor, he has furnished the data on which his opinion is based. कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसका डेटा उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं कंक्लूजन पे आया कि ये जो लीकर है ये इलिसिट है, ये लीकर है इलिसिट नहीं है, वॉट एवर इट मे बी. तो वो ग्राउंड्स बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 51. His bald statement that the contents of the bottles are illicit liquor is not sufficient to prove that fact. Suppose if the excise inspector is only merely giving his opinion that this is a illicit one, it is not sufficient to prove that the liquor is illicit. He must mention the grounds on the basis of which he come to conclusion. कि वो conclusion पे कैसा आया, वो opinion भी उसको बताना पड़ेगा. सिर्फ एक statement दे दिया कि ये liquor illegal है, sufficient नहीं होगा. उसको ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों illegal है, क्या grounds है कि जिसके बेस पे वो कह रहा है कि illegal है. तो grounds भी section 51 में relevant हो जाएंगे. Probable question है इस पर. Grounds and reason on which the opinion is based is relevant under section 48, section 49, section 50, section 51. तो अगर हम देखिए section 51 is a correct answer. The grounds, relevancy of grounds of opinion is mentioned under section 51. So this is a particular provision which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.